Hello, my dear champions. My name is Naveen Kumar, and you are watching Science Square classes. As you all know that we completed our chapter 9 exercise, all questions, and there is examples remaining now. So we have to also solve them. So in this part, we are going to solve example number 1, example number 2, and example number 3. A brief solution. And one more thing, if you have not subscribed my YouTube channel till now, go it for now and subscribe it and press the bell icon and share with your friends and family members and ask them to subscribe. Okay. And if you did all these things, then come on, let's start now. Okay. So first of all, what we have given in the question number 1, example number 1, and what we have to find out, before that we have to read out the question. Okay. ठीक है, चलते हैं. So देखते हैं. In the example number 1, what we have given, a tower stands vertically on the ground. Vertically means, और आप बोल सकते हो altitude बोल सकते हो, चाहो तो perpendicular बोल सकते हो. सॉरी है ना ऐसे. So ये आपके पास एक क्या है, टावर है. ठीक है. A tower stands vertically on the ground. This is the ground. Okay. Now this is the tower AB. AB. Okay. A tower stands vertically on the ground from a point on the ground. मान लो यहाँ पर एक point है ground पे. Okay. So from a point on the ground which is 15 meter away from the foot of the tower. This is the top of the tower and this is the foot of the tower. So this point is 15 meter away from the foot of the tower. So 15 meter away from the foot of the tower. Let's assume that the following point is C. कौन सा point है? C. Next. The angle of elevation of the top of the tower is found to be 60 degree. कि यहाँ से angle of elevation बन रहा है, means we are looking from down to top. कि आप नीचे से कहाँ देख रहे हो, ऊपर की ओर देख रहे हो. That's why the angle of elevation will be here. So this is the angle of elevation which is 60 degree. Next, find the height of the tower. Means we have to find out the height of the tower. कि आपको क्या निकालना है? Tower निकालना है. So what we have given? Given that. We have given that. Let's assume that AB is the height of the tower. है ना, लिख देते हैं. Let height of the tower is AB. Height of the tower. Height of the tower is AB. कि जो टावर है उसकी हाइट क्या है? AB. And a point from its foot. A point from its foot is C. From 15 meter away. 15 meter away a point from its foot. From its foot. From its foot is C. क्या है? C. क्या है? C. So therefore BC equals to 15 meter. Okay. What we have to find out now? We have to find out its height. Means we have to find out AB. आपको क्या निकालना है? AB निकालना है. Is there a doubt? No. So as you all know that we will take two sides. So first of all, we all know that the side in front of right angle is always its hypotenuse. This side in front of given angle is always its perpendicular and the remaining side is its base. So as you all know that we can have a three sides. Given that, find out and common. So there is a no common side. It means we have to take a given and we have to take a find out. So what we have given in this question, we have given base which is 15 meter. And what we have to find out, we have to find out its perpendicular. So there is a relation between perpendicular and base which is 10. क्या? 10 theta. ठीक है? So in triangle ABC, in triangle ABC, क्या 10 थीटा की जगह एंगल कितना है? 60 डिग्री. 10 थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज द परपेंडिकुलर? AB. एंड व्हाट इज द बेस? बेस इज BC. ओके. सो 10 60 की वैल्यू क्या होती है? √3. AB. व्हाट इज द BC? BC क्या है? 15. सो डू क्रॉस मल्टीप्लाई AB into 1. Do cross multiply AB into 1, AB, and 15 into √3. So equals to 15 √3 meter, which we have to find out. This is the height of the tower. कि यही टावर की क्या थी? हाइट थी. Is there any doubt? No. So ये आपका हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का आंसर. Next, what we have given in the example number 2. So an electrician has to repair an electric fault. कि इलेक्ट्रिशियन है जिसको इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करना है. ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर. तो एक पोल है जिसकी हाइट क्या है? 5 मीटर. सो ये पोल दे रखा है AB, AD. सो AD इज द 5 मीटर.
It is the 5 meter. Next, C needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. कि ये जो इलेक्ट्रिशियन है, ये जो लड़की आपको दिख रही है सुंदर सुंदर, ये जो है इसको इलेक्ट्रिशियन फॉल्ट क्या करना है, रिपेयर करना है। टावर की हाइट तो 1.5 है, लेकिन इसे जो है टावर की हाइट से कुछ मीटर नीचे आना है, ताकि अगर ये यहाँ पे आएगी तो ये खड़ी रहेगी तो इसके हाथ इस इलेक्ट्रिकल वायर पे चले जाए। अगर ये डायरेक्ट यहाँ पे आएगी तो यह ऊपर ठीक इसको करेगी, क्योंकि वायर तो यही है। अब ये खड़ी भी होगी तो ऊपर, जैसे मान लो कि यहाँ नीचे जो है ना ये, ठीक है, ये एकदम ग्राउंड पे, मान लो ग्राउंड पे, यही ग्राउंड पे वायर जा रहे हैं और मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं, तो मैं इस पे खड़ा होकर ठीक क्या करूंगा, कुर्ता धोती तो नहीं। तो इट मीन्स इसको, इस वायर को, इलेक्ट्रिक फॉल्ट को रिपेयर करने के लिए इसे पोल से थोड़ा नीचे रहना पड़ेगा। जैसे मान लो अब ये पोल यहां तक जो है, ये क्या है, मान लो ये पोल है, ठीक है, पूरा पोल है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाऊं तो यहाँ से मेरे हाथ यहाँ पे आएंगे और मैं इस इलेक्ट्रिक वायर को क्या, इलेक्ट्रिक फॉल्ट को क्या कर सकता हूँ, रिपेयर कर सकता हूँ। सो ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक वायर जा रहे हैं और यहाँ पर ये पहुंचना चाहती है। सो ये जो पॉइंट है ये 1.3 मीटर नीचे है। ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे आना चाहती है और ये 1.3 मीटर कहाँ है, नीचे। नेक्स्ट, फॉल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके, अब इसमें दे रखा सी फिगर, तो हमने फिगर देख ली। नेक्स्ट, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। तो ये बोल रहा है कि इस लैडर की लेंथ क्या होनी चाहिए, देखते हैं। यूज विच व्हेन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। इंक्लाइंड का मीन्स होता है झुका होना, जो कितने डिग्री के एंगल पे झुकी हुई है, 60 डिग्री के पे। नेक्स्ट, टू द हॉरिजॉन्टल, ये रहा हॉरिजॉन्टल, इसके साथ 60 डिग्री पे झुकी हुई है। वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, ठीक है। अब ये बोल रहा है ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल। ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है ये पोल के फुट से कितनी डिस्टेंस पर है ना। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड हैव द फुट ऑफ द लेडर, कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर ये लेडर लगाई जाए कि ये 1.3 मीटर नीचे पहुंचे। पोल की हाइट से 1.3 मीटर कहां पहुंचे, नीचे। तो ये पोल के फुट से कितनी दूर रखी जाए ये लेडर। तो आपको इसमें दो चीजें फाइंड आउट करनी है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यू हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लेडर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सी एंड डी। ओके, सो व्हाट वी हैव गिवन दैट, आपको गिवन क्या है, दैट एडी कितना है, 5 मीटर। एज वी ऑल नो दैट, आप चाहो तो इस ए से लेके डी तक को क्या बोल सकते हो, ए बी प्लस बी डी। क्या बोल सकते हो, ए बी प्लस बी डी इक्वल्स टू ए डी। बोल सकते हो, नहीं बोल सकते। सो आपने बोला दैट ए डी इक्वल्स टू ए बी प्लस बी डी। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डी, इट इज 5 इक्वल्स टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी। तो ये 1.3 मीटर नीचे ये पॉइंट, तो इसकी वैल्यू होगी 1.3 प्लस बी डी। अब यहां से अपन बी डी निकालेंगे, ये प्लस का इस तरफ आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। सो 5 माइनस 1.3, इट विल बी 3.7। सो बी डी इक्वल्स टू 3.7 मीटर। तो आपने बोला सर अगर ये 5 है पूरा और ये 1.3 है तो यहां से यहां तक क्या होगा, 3.7 मीटर। नाउ वी हैव a triangle BDC. We have a triangle BDC. So okay, in triangle BDC, what we have given? We have given 3 point. देखो पहले उसके बारे में, उससे भी छोड़ दो। The side in front of right angle is always its hypotenuse. The side in front of given angle is always its perpendicular. Remaining side is base. क्या है, base. So we have to find out two things in this question. The first thing is height of the ladder and the second that ये वाली distance कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो आप पहले क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है। क्या, डीसी फाइंड आउट करना पहले, ठीक है। डीसी ले लो, आपकी जैसे मर्जी वो ले लो। तो आपने बोला सर वी हैव गिवन इट्स परपेंडिकुलर, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स बेस। क्या फाइंड आउट करना है, बेस। तो आपने बोला सर परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन, तो अभी आपने बताया क्या होता है, tan थीटा। सो वी हैव टू टेक tan theta and the angle is 60 degree. So tan 60 degree equals to perpendicular upon base, and the perpendicular is BD and the base is DC. What is the value of tan 60 degree? It will be √3 equals to BD. BD क्या है, 3.7 upon DC. अब आप क्या करो, आपको तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, डीसी की। सो वी हैव टू इंटरचेंज द बोथ टर्म्स। आप इन दोनों टर्म को इंटरचेंज कर दीजिए। इंटरचेंज का मींस है कि √3 की जगह कौन आ जाएगा, डीसी, और डीसी की जगह कौन आ जाएगा, √3। सो डीसी इक्वल्स टू
3.7 अपॉन, अब जो √3 यहाँ आएगा, सो व्हाट वी हैव टू कंसीडर दी √3 वैल्यू, अपने को √3 की वैल्यू क्या कंसीडर करनी है, 1.73। तो मैं इसको इरेज करके क्या लिख देता हूँ, 1.73। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। अब आप सुनना, अब मान लो आप इस पॉइंट को हटाओगे, हटा दिया तो नीचे क्या लगेगा, आपने बोला से नीचे 10 लगेगा, क्या लगेगा, 10। जब आप इस पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर क्या लगेगा, 100। सो 37 इंटू 100, सो DC इक्वल्स टू 3700 अपॉन 1730। तो जब आप 3700 को 1730 से डिवाइड करोगे, सो डीसी की वैल्यू क्या आएगी, डीसी की वैल्यू जो है अप्रोक्स 2.14 मीटर आएगी, है ना, 2.14 मीटर अप्रोक्स आएगी, अप्रोक्स। ठीक है, वैसे तो आएगी 2.13888, ऐसे कुछ आएगी 2.13888, लेकिन 3 के बाद सारे बड़े नंबर आ रहे हैं तो इसमें एक ऐड कर दिया, सो 2.14 अप्रोक्स बोल दिया। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब आपने क्या फाइंड आउट कर लिया, डीसी। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट हाइट ऑफ द लेडर। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ द लेडर। So we have to find out the height of the ladder. What we have given? We have given its perpendicular now. And what we have to find out? We have to find out its hypotenuse. So what is the relation between perpendicular and hypotenuse? This is the sin theta. कि perpendicular और hypotenuse के बीच में relation क्या होता है, sin theta. In same triangle, in triangle ABDC. आपने बोला सर sin theta, perpendicular hypotenuse के बीच में relation क्या होता है, sin theta. So sin, the angle is 60 degree. Perpendicular upon hypotenuse, what is the perpendicular? Direct लिख रहा हूं 3.7 and its hypotenuse. The hypotenuse is BC, which we have to find out. So what is the value of sin 60 degree? It will be √3 upon 2 equals to 3.7 upon BC. सो डू क्रॉस मल्टीप्लाई। सो आप जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3.7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो 3.7 इंटू 2 7.4 और √3 इंटू BC। सो √3 इंटू BC इक्वल्स टू 3.7 टू जा बोलो, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो 3.7 इंटू 2। कोई दिक्कत है? आपने बोला सर ये √3 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा, किस में जाएगा, डिवाइड में। सो आपने ये बात भी सही है, तो आपने बोला कि सर डायरेक्टली लिख देते हैं कि BC इक्वल्स टू 3.7 इंटू 2 और इधर जो √3 मल्टीप्लाई में था इस तरफ आएगा डिवाइड में। सो आपने बोला सर यहाँ √3, मैंने बोला ठीक है। अब बताओ √3 की वैल्यू क्या कंसिडर करनी है, आपने बोला सर 1.73। ठीक है, तो आपने बोला सर 1.73, तो कर दिया 1.73। अब आप में से किसी के दिमाग में आया सर हमने फर्स्ट में सोल्व किया कि 3.7 को जब आप किससे डिवाइड करोगे, 1.73 से, 3.7 को 1.73 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 2.4। क्या आएगा, 2.4। सो 2.4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2.4 इंटू 2 4.8 मीटर अप्रोक्स, सॉरी 114 है ना, 2.14 मीटर है ना। 3.7 को 1.73 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है, 2.14। सो 2.14 इंटू 2, सो आपने बोला सर BC इक्वल्स टू 4.28 मीटर अप्रोक्स। ये इसकी क्या आ गई वैल्यू, एंड विच वी हैव टू फाइंड आउट। तो आपको यही फाइंड आउट करना था, एक तो क्या फाइंड आउट करना था कि लेडर की लेंथ क्या होनी चाहिए। सो दैट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, क्या होनी चाहिए, 4.28 मीटर की। इस लेडर की लेंथ होनी चाहिए 4.28 मीटर। एंड ये पूछ रहा था कि हाउ मच फार फ्रॉम वी हैव टू प्लेस द लेडर, कि इसके फुट से कितना दूर आपको प्लेस करना था। तो 2.14 मीटर आपको जो है वो इसके फुट से दूर प्लेस करना है, किसको, लेडर को। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर दैट वी हैव टू फाइंड आउट। इन द क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, देखो पहले फाइंड आउट करने से पहले वी हैव टू रीड आउट द क्वेश्चन। मैं लिख देता हूं पहले आंसर। सो एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, कि एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर का मतलब होता है कि कोई खड़ा हुआ है जो एक ऐसे किसी को देख रहा है। ठीक है, तो मान लो ये एक ऑब्जर्वर है जो अब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो ऑब्जेक्ट क्या है वो आगे देखेंगे। आपने बोला सर ये ऑब्जर्वर है एंड इट्स हाइट इज 1.5 मीटर, इट्स हाइट इज 1.5 मीटर। सो दिस इज द हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर। मान लो ये ऑब्जर्वर है ए बी, ठीक है। नेक्स्ट
इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। एक चिमनी है, क्या है, चिमनी बोल दो, टावर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है। सो एक मान लो ये चिमनी है, तो ये क्या होगी, चिमनी। तो ये मान लो सी डी है, क्या है, सी, और ये है डी। अब ये जो ये ऑब्जर्वर है, ये भी ग्राउंड पे है और चिमनी भी कहाँ है, ग्राउंड पे। ठीक है। अब अगर मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं, मैं ग्राउंड पे हूं, मेरी आंखों से जस्ट स्ट्रेट जाने वाली लाइन को क्या बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। सो दैट शुड बी द लाइन व्हिच इज नोन एज हॉरिजॉन्टल लाइन। किस लाइन को क्या बोलोगे, ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। कैसी लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है। नेक्स्ट इज नाउ फ्रॉम अ चिमनी, और ये यहां से यहां तक क्या है, 28.5 मीटर अवे फ्रॉम दी चिमनी। आपने बोला सर जरूरी है क्या, यहां से यहां तक 28.5 हो, सर ऊपर वाला भी तो 28.5 होगा। हाँ, ऊपर वाला भी क्या होगा, 28.5। चाहे इसकी डिस्टेंस यहां से यहां तक देख लो, चाहे यहां से यहां तक देख लो, इट विल बी द सेम। नेक्स्ट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आईज। इस ऑब्जर्वर्स की आई से जब एंगल पे, सॉरी चिमनी पे क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 45 मीटर। तो आपने बोला सर ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन विच इज 45 मीटर, सॉरी 45 डिग्री। सो एंगल क्या हो गया, 45 डिग्री। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। सो वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द चिमनी। द हाइट ऑफ द चिमनी इज सी डी, और इस पॉइंट को मान लो ई। चिमनी की हाइट क्या है, सी डी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एज्यूम दैट देयर इज अ ऑब्जर्वर विच इज ए बी, और ऑब्जर्वर की हाइट क्या है। अब ये लिख लेना आप कि देयर इज अ ऑब्जर्वर विच इज ए बी, और ये क्या है 1.5 मीटर, एंड देयर इज अ चिमनी विच इज सी डी, है ना, क्या है। तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं कि ऑब्जर्वर तो क्या है, लेट लेट ऑब्जर्वर इज ए बी। ठीक है, ऑब्जर्वर तो क्या है, ए बी, चिमनी क्या है, चिमनी इज सी डी, है ना। और व्हाट वी हैव गिवन नाउ, we have given the height of the observer is which is 1.5 meter. Next, what we have to find out, we have to find out the height of the chimney which is CD. आपको क्या निकालना है, CD निकालना है। आपने बोला सर अगर ये 28.5 है तो आपने इसे भी 28.5 बोल दिया। बोला सर अगर ये 1.5 होगी तो ये भी क्या होगी, 1.5। ठीक है, इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट सीई नाउ। अगर आप यहां से सीई निकाल लोगे तो सीई में क्या ऐड कर देना, ईडी। आपके पास किसकी हाइट आ जाएगी, चिमनी की। सो वी हैव टू कंसीडर ट्राइंगल सी ई ए या ए ई सी। इन ट्राइंगल ए, पहले एक बात बताओ, आपने क्या किया, ए बी इज इक्वल्स टू ईडी, तो यहां लिख देते हैं सॉल्यूशन में दैट ए बी इज इक्वल्स टू ईडी, ए बी इज इक्वल्स टू ईडी विच इज 1.5 मीटर। नेक्स्ट, आपने एक बात और बोली कि सर बीडी और ए एक दूसरे के क्या इक्वल, सो ए इक्वल्स टू बीडी विच इज 28.5 मीटर। कोई डाउट है यहां तक, कोई डाउट नहीं। नाउ वी हैव टू कंसीडर अ ट्रायंगल ए ई सी। सो इन ट्रायंगल ए ई सी, कौन सा ट्रायंगल लिया, ए ई सी। तो देखना ये ट्रायंगल आपने कंसीडर किया है, तो आपने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया। द साइड इन फ्रंट ऑफ राइट एंगल इज ऑलवेज इट्स हाइपोटेनियस, द साइड इन फ्रंट ऑफ गिवन एंगल ऑलवेज इज परपेंडिकुलर एंड द रिमेनिंग साइड इज बेस। सो आपके पास किसकी वैल्यू है, बेस की वैल्यू, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट इट्स परपेंडिकुलर। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस व्हिच इज tan थीटा। सो tan and the angle is 45 degree, so tan 45 degree equals to perpendicular upon base. What is the perpendicular here, EC या CE बोल दो, चाहिए की बात है, CE upon CE upon A. What is the height, sorry, what is the value of tan 45? So the value of tan 45 is 1 equals to CE. CE क्या होगा, तो आपने बोला सर CE तो अपने को फाइंड आउट करना है, so CE upon what is the value of AE, 28.5. सो आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, CE इंटू 1, CE इक्वल्स टू 28.5 इंटू 1, 28.5, सो 28.5 मीटर। आपने बोला सर चिमनी की हाइट आ गई क्या, नहीं, चिमनी की हाइट तो क्या थी, सी डी, आपने तो क्या निकाला है, केवल सीई। तो आपने बोला सर
CD जो है C से लेकर D तक है वो सर CE प्लस ED का सम ही तो है। CE प्लस ED का सम ही क्या है? CD। तो आपने बोला सर वी नो दैट CD जो है ना CD वो किसका सम है? CE प्लस ED या DE। इन दोनों का समी क्या है? CE, ये इतना इतना CE प्लस ED, इन दोनों का समी क्या है? CD। सो CD आपको निकालना है। सो CD इक्वल्स टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CE? बोला सर अभी निकाला है 28.5 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ED? ED की वैल्यू क्या है? 1.5। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो CD आ जाएगा 30 मीटर। So therefore the height of the chimney is 30 मीटर और यही आपको फाइंड आउट करना था what is the height of the chimney. So the height of the chimney is 30 मीटर. I hope you understand very well and अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से कमेंट कर देना, मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और इसे हो सके जितना शेयर भी कीजिए ताकि किसी और को भी पढ़ने में मदद मिले। थैंक यू and have a nice day to all of you. Bye.